So the next topic is about the nomenclature of aldehyde and ketones and carboxylic acid. So in this topic we will see the aldehyde and ketones and their nomenclature. Okay, so first we will see the nomenclature of aldehyde and carboxylic acid. Okay, nomenclature of aldehyde and carboxylic acid. So nomenclature means giving name to the aldehyde and ketone. So we know that the general formula of aldehyde is dash CHO and carboxylic acid is dash COOH. Okay, so that aldehyde and carboxylic acid are related with each other. They are interrelated with each other. Only one oxygen is more in carboxylic acid than that of the aldehyde. So they are interrelated or related with each other. Okay. So there are two types of systems. Naming systems are there, and we know that trivial system and IUPAC naming system. So trivial system is also called as common name system. Trivial system is also called as common name system and International Union for Pure and Applied Chemistry. So this is the second method, standard method to give the names to the compounds. Okay. So first we will see the nomenclature of trivial names of aldehyde and carboxylic acid. With the help of traditional method, okay, we will see the nomenclature. Trivial names of aldehyde and carboxylic acid. So in that trivial system, aliphatic aldehyde. So there are two types of aldehyde as we know, aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. So aliphatic aldehyde name is derived from carboxylic acid. So the name of aliphatic aldehyde is derived from the name of the carboxylic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से उसका जो नेम है वो डिराइव हुआ है. जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें जो ये सफिक्स है आईसी एसिड is replaced by aldehyde. Okay, so trivial name of aliphatic aldehyde are derived from the corresponding trivial name of carboxylic acid. तो carboxylic acid का जो trivial name है उससे aliphatic aldehyde जो है उसका नेम बनाया गया है या डिराइव किया गया है. So here ending IC acid of carboxylic acid is replaced by aldehyde. Okay, तो ये जो IC है, IC एसिड ये निकल के लगाते हैं अल्डिहाइड, कार्बोक्सिल अल्डिहाइड, कार्बोक्सिला अल्डिहाइड. ओके, मींस आईसी एसिड ये पूरा का पूरा ये रिमूव करना है और ये रिमूव करने के बाद अल्डिहाइड ये सफिक्स लगाना है, तो उसको ही बोलेंगे कार्बोक्सिला अल्डिहाइड इन द सेंस. ओके, तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि ट्राइवियल नेम और कॉमन नेम सिस्टम में एलिफेटिक अल्डिहाइड का जो नाम है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से डिराइव हुआ है. और दूसरी जो बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आईसी एसिड है लास्ट वाला पार्ट वो निकालना है और उसके जगह पे सफिक्स लगाना है अल्डिहाइड या रिप्लेस करना है आईसी एसिड को अल्डिहाइड से. ओके, सो अगर समझो सब्स्टिट्यूएंट रहे, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो
फंक्शनल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट रहे कार्बोक्सिलिक एसिड में, in case of substituted aliphatic carboxylic acids and aldehydes, the position of substitute is indicated by labeling the carbon serially as a alpha, beta and gamma so on। तो हमको पता है कि जो मेन कार्बन होता है जहां से हम गिनना शुरू करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं, वो छोड़ के उसके आगे वाले जो कार्बन है उसको हम नंबरिंग करते हैं कॉमन नेम सिस्टम में ग्रीक लेटर से। कॉमन नेम सिस्टम में हम कैसे करते हैं, ग्रीक लेटर से हम शुरुआत करते हैं। तो अल्फा, बीटा एंड गामा से हम शुरुआत करते हैं, उससे हम नंबरिंग देते हैं। या यहाँ पे नंबर नहीं दे सकते, हम कॉमन नेम सिस्टम में नंबर नहीं देते तो ग्रीक लेटर्स का यूज करते हैं। और स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन नेक्स्ट टू कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन को छोड़ के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है उसको हम अल्फा, बीटा और गामा और आगे सब्सिक्वेंटली हम वैसे ग्रीक लेटर्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से कॉमन नेम सिस्टम में हम ग्रीक लेटर का यूज करते हैं, ना कि नंबरों का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक जो रूल है वो है कि पहले आईसी एसिड को रिप्लेस करेंगे एल्डिहाइड से, नाम अगर देना हो तो हमको, और उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सब्स्टिट्यूएंट हम लेबल करेंगे अल्फा, बीटा या गामा। तो ये हमको रूल पता है। ये रूल के तहत हमने बहुत सारे नाम ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है कि 1 2 3 4 ऐसे नंबर देने के बजाय हम अल्फा, बीटा, गामा ऐसे यूज करते थे उसको नंबरिंग करने के लिए। ओके, तो इस तरह से ये ट्राइवियल नेम के जो कुछ रूल्स है वो रूल्स हमने देखे ट्राइवियल के। अब आईयूपीएसी के हम रूल देखेंगे। तो आईयूपीएसी के जो रूल्स है वो ऐसे है कि यहाँ पे नंबरिंग देनी पड़ती है। तो आईयूपीएसी नेमिंग जो है अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इसमें एलिफेटिक अल्डिहाइड का जो नाम है अल्केन से डिराइव हुआ है। ओके, ये जो नाम है वो अल्केन से डिराइव हुआ है। तो अल्केन से कैसे डिराइव हुआ है वो हम देखते हैं। तो ये है अल्केन। अल्केन का जो ई है वो रिप्लेस होगा एल से, मतलब अल्केनल बनेगा। अल्डिहाइड में मतलब अल्केन जो है, अल्केन में से ई निकलेगा और वो रिप्लेस करेगा एल। ओके, तो अल्केन में से ई निकल गया बाहर और एल लग गया अंदर, तो ये सफिक्स लगा तो अल्केनल ऐसे वो बनेगा। प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, मिथेनल, इथेनल ऐसे वो बन सकता है। तो लास्ट में एल सफिक्स होता है तो अल्डिहाइड होता है, और लास्ट में अगर ओ एन ई हुआ तो होता है कीटोन। ये ध्यान में आप रखना, लास्ट में अगर एल हुआ तो वो होता है अल्डिहाइड, एंड लास्ट में अगर ओ एन ई हुआ तो वो होता है कीटोन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सफिक्स जो है वो लगता है एल अल्डिहाइड में एंड कीटोन में लगता है ओ एन ई। ओके, तो एक रूल है। अगर कार्बोक्सिलिक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें तो अल्केन जो है उसमें जो ई है वो रिप्लेस होता है OIC एसिड से, अल्केनोइक एसिड। सिंपल रूल है ये। अल्डिहाइड में क्या होता है, रूल समझो आप। अल्डिहाइड्स में अल्केन जो है उसका ई रिप्लेस होता है Al से, और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ई होता है वो रिप्लेस होता है OIC एसिड में। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OIC एसिड ये सफिक्स लगता है ई के जगह, और एलिफेटिक एल्डिहाइड में ई के जगह Al लगता है। तो इस तरह से ये दोनों जो है रूल IUPAC के रूल है। तो कॉमन नेम सिस्टम के या ट्राइबल नेम सिस्टम के रूल जो है वो IC एसिड लगता है। IC एसिड जो है ओके वो अल्लाइड से डायरेक्टली रिप्लेस होता है। रूल आप ध्यान में लो, अगर रूल आपके अच्छे से ध्यान में रहे या आपको अच्छे से समझे तो आप जो नेमिंग सिस्टम है या नाम आप दे सकते हो। कोई भी अगर कंपाउंड लिया तो आप अच्छे से नाम उसको दे सकते हो, ये आप ध्यान में रखो। ओके, तो पेरेंट चेन जो है
उसमें अगर CHO या COOH ऐसे ग्रुप रहे, जैसे कि ये अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अगर ग्रुप रहे, तो ऑलवेज प्रेजेंट एट एंड ऑफ पेरेंट स्ट्रेट चेन। तो ये जो ग्रुप है COOH या CHO, ये हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? एट द एंड ऑफ द चेन। तो ये समझो ये चेन है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे, कौन से भी एक एंड को चेन के वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे COOH भी प्रेजेंट रहता है, बीच में ये प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये आप ध्यान में लो। बीच में ये प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये आप ध्यान में रखना। ओके, तो ये रूल आपको ध्यान में आ गया कि अगर पेरेंट चेन रही तो पेरेंट चेन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? तो CHO ग्रुप जो है या COOH ग्रुप जो है वो एंड में रहते हैं पेरेंट चेन के। ओके, वही हमारा पेरेंट चेन होगा। अगर दो CHO ग्रुप रहे एट द एंड ऑफ पेरेंट चेन, तो E जो है वो रिटेन होता है, मगर ना अगर हम नाम दे तो अल्केन जो है, अल्केन की जो पेरेंट चेन है उसमें अगर दो CHO ग्रुप रहे तो E जो है वो निकलता नहीं। ओके, E वैसे के वैसे रहता है और सफिक्स डायल लगता है, मतलब अल्केन डायोल। ओके, ऐसे बनेगा। ओके, और अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करें, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा तो डायोक एसिड। ओके, डायोइक एसिड ऐसे वो सफिक्स लगेगा। तो इस तरह से ये रूल है कि अगर CHO या COH ये जो ग्रुप है वो दो रहे, एक से ज्यादा रहे, तीन रहे तो ट्रायोइक एसिड लगेगा और ट्रायल लगेगा, TRIAL ट्रायल लगेगा। तो इस तरह से ये जो COOH या CHO ग्रुप है वो एक से ज्यादा अगर रहे तो ये अलग तरह का नियम है, इसमें रूल है, उसमें E जो है वो रिटेन होता है और अलग तरह से वो नाम दिया जाता है। E रिटेन होके डायोल ट्रायोल जितने होंगे फंक्शनल ग्रुप वैसे उसको नाम दिया जाता है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, अल्डिहाइड के बारे में क्या रूल है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, जब CHO अटैच रहता है रिंग को, CHO अटैच रहता है बेंजीन रिंग को, ये CHO है, ये बेंजीन रिंग को कहाँ पे भी अटैच रहेगा, कौन से भी पोजीशन में ये अटैच रहेगा, तो उसको कार्बा अल्डिहाइड बोलते हैं। ओके, कार्बा अल्डिहाइड उसको बोलते हैं। एड आफ्टर फुल नेम ऑफ पेरेंट साइक्लो अल्केन, जो कुछ भी ये अल्केन का नाम होगा या एरिल ग्रुप का नाम होगा उसके बाद अल्डिहाइड ये सफिक्स लगाना चाहिए या लगाते हैं। तो एड आफ्टर फुल नेम ऑफ पेरेंट साइक्लो अल्केन्स। ओके, तो इस तरह से ये नेमिंग सिस्टम दी जाती है। ओके, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में रहा तो ये भी रिंग को अटैच रहता है और उसको साइक्लो अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली बोला जाता है। जैसे इसको कार्बा अल्डिहाइड जो है वो बोलते हैं और उसके पहले साइक्लो अल्केन्स लगाते हैं, उस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे साइक्लो अल्केन्स लगाते हैं। तो इस तरह से ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में अल्डिहाइड के IUPAC के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बोला जाए तो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अल्डिहाइड जो है उसके बारे में अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट अगर दो से ज्यादा हुए, सब्स्टिट्यूएंट अगर दो से ज्यादा अगर होते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो, दो और दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग में प्रेजेंट है तो क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये एक फंक्शनल ग्रुप है और ये एक फंक्शनल ग्रुप है, देयर आर टू
more than two, okay, functional group is there, two or more than two. तो इसमें प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी इसको देनी है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो है उसको लो नंबर देना है। तो यहाँ इन दोनों में ये एक और ये एक, इसमें हाई प्रायोरिटी इसकी है क्योंकि ये अल्डिहाइड है, इसके लो प्रायोरिटी है, ओके, इसकी प्रायोरिटी लो है, ओके। और इसकी हाई प्रायोरिटी है। तो हाई प्रायोरिटी को लो नंबर देना पड़ेगा, है ना। लो नंबर मतलब एक यहां से स्टार्ट होगा, 2, 3 और 4। तो हाई प्रायोरिटी ये है, हाई प्रायोरिटी को लो नंबर देना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे लो नंबर दिया। यहाँ पे जो है तो मैंने गलती से नोट्स बना दिया, इसका नाम ये है और इसका नाम ये है। तो यहाँ पे जो है प्रायोरिटी इसकी हाई है, इसकी लो है। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा। और जब CHO ग्रुप जब बेंजीन रिंग को अटैच होता है, CHO ग्रुप अगर बेंजीन रिंग को कहाँ पे भी अटैच होता है तो उसको बोलते हैं फॉर्मिल। उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिल उसको बोलते हैं। तो ये CHO ग्रुप अटैच है, ये लो प्रायोरिटी वाला है और ये हाई प्रायोरिटी वाला है। नंबरिंग यहाँ से देनी पड़ेगी। तो 2 नंबर पे फॉर्मिल ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से इसका नाम आया 2 फॉर्मिल। और COH जब अटैच होता है तो बेंजीन का रिप्लेस होता है, ओके। बेंजीन जो है ये बेंजीन रिंग है, E is replaced by IOC एसिड, क्योंकि OOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप COOH यहाँ पे ये बेंजीन रिंग को COH ग्रुप अटैच है, इस वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और मैंने बोला कि रूल क्या है कि अगर कोई एरिल या अल्किल ग्रुप होता है और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अटैच होता है तो उसमें जो लास्ट वाला E है वो रिप्लेस होता है IOC एसिड से। तो ये E रिप्लेस होता है, E निकलता है, IOC एसिड लगता है, ओके। तो फंक्शनल ग्रुप अगर COOH डबल होता तो E रिटेन होता, पर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एक ही है COOH, इस वजह से IOC एसिड ये लगेगा 2 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। समझा आपको। यहाँ पे हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है उसको लो नंबर देना है, वहां से स्टार्ट करना है, ओके। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट में तो ऐसे प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है उसको लोअर नंबर देना पड़ेगा, ओके। इसकी बात करें तो यहाँ पे ए एक है और ये एक है, तो ऑब्वियसली इसकी जो प्रायोरिटी है वो ये हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, इसको लो नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ से एक लो नंबर है, 2, 3 और 4, ओके। तो तीसरे पोजीशन पे OH ग्रुप है, मतलब 3 हाइड्रोक्सी। चौथे पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, मतलब 4 मिथिल। एंड पहले को अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन में से E रिप्लेस होगा OIC एसिड से, मतलब बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम कैसे आया, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल बेंजोइक एसिड। कैसे नाम आया ये आपको समझा ही होगा। यहाँ पे तीसरे पोजीशन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, चौथे पोजीशन को मिथिल ग्रुप है, और जो स्टार्ट वाला पोजीशन है वो OCOOH है और वो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। तो मैंने बोला कि जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है उसको नंबरिंग देना पड़ेगा, वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, या लो नंबर उसको देना पड़ेगा। हाई नंबर जो है वो लो प्रायोरिटी ग्रुप को दिया जाएगा। इस तरह से ये सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में रूल था कि अगर फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा हुए तो प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। और प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमको समझना चाहिए कि जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो प्रायोरिटी ज्यादा लेगा, या उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा होंगे तो उसके की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो उसको लो नंबर देना पड़ेगा।
ओके, तो इसमें देखा हमने लास्ट वाला जो पॉइंट है कीटोन वाला, वो हम देखेंगे शॉर्टकटली। ये रूल्स मैंने समराइज किए नोट्स के फॉर्म में, वो शॉर्टकटली आपको समझेंगे। तो ट्राइवियल या आईयूपीएसी नेम जो है कीटोन के, वो देखेंगे। तो ट्राइवियल नेम में क्या करते हैं, अल्किल और अरिल ग्रुप जो है, जो अटैच होता है कार्बन कार्बोनिल कार्बन को अटैच होता है, उसके बेस पे उसका नाम दिया जाता है। ओके, तो ये जो ट्राइवियल नेम होता है इसका, तो वो किसके किसके बेसिस पे दिया जाता है, तो एलिफेटिक कीटोन्स आर बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ अल्किल ग्रुप्स और एरिल ग्रुप अटैच टू कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन को अल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप जो अटैच होता है उसके बेसिस पे उसका नाम डिसाइड होता है, उसका नाम दिया जाता है। ओके, इतना सिंपल है ये। और एल्किल या एरिल ग्रुप जो है, वो एल्किल या एरिल ग्रुप रिटर्न डाउन करने रहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेने पड़ते हैं। पता है ये भी रूल आपको। तो कुछ कुछ रूल्स आपको पहले से ही पता है, इतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका रूल्स जो है वो नहीं है। 50 to 60% रूल आपको पता है, सिर्फ खाली यहाँ पे जो प्रेफिक्स एंड सफिक्स जो है कौन कौन से लगाने हैं, वही वो फंडा है इसमें। ओके, तो यहाँ पे जो आईयूपीएसी नेमिंग के जो रूल्स है वो हम देखेंगे। और इसमें एलिफेटिक कीटोन्स में भी सेम रूल है कि अल्फा बीटा गामा ऐसे जो लेबलिंग है वो कार्बन को दिया जाता है। कार्बोनिल कार्बन छोड़ के आगे वाले जो कार्बन है उसको अल्फा बीटा गामा ऐसे नंबरिंग दिए जाता है। कॉमन नेम सिस्टम में वही सिस्टम होता है, उसमें नंबर नहीं दिए जाते, उसमें जो ग्रीक लेटर्स है उसका यूज किया जाता है नंबरिंग देने के लिए। और जो कॉमन नेम सिस्टम के जो नाम है वो भी उसी तरीके से दिए जाते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे आईयूपीएसी नेमिंग में क्या करते हैं कि ये जो अल्केन है, अल्केन में से जो ई है वो रिप्लेस होगा ONE से। ओके, अल्केन का जो ई है वो रिप्लेस होगा ONE से। तो अल्कैन वैसे के वैसे, और ई के जगह क्या आया, ONE आया, तो अल्कैनॉन ऐसा नाम आया। अल्डिहाइड के बारे में क्या था, तो अल्डिहाइड के बारे में ये जो इसकी पोजीशन है ई की, ई के बजाय Al आया था अल्डिहाइड में, यहाँ पे ई के बजाय ONE आएगा। ओके, तो इस तरह से अल्कैनोन होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन जो है कार्बन एटम की, जिसमें कैटोनिक कार्बोनिल ग्रुप होगा, उससे नंबर स्टार्ट होगा। ओके, जिस एंड से कैटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है उस एंड से वो स्टार्ट होगा नंबरिंग। ओके, तो अगर ये रूल समझा आपको कि ई इज रिप्लेस बाय ONE, एंड जहां से कैटोनिक ग्रुप होगा वहां से वो स्टार्ट होगा। तो ये रूल इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि और बोर्ड एग्जाम को रूल्स पूछे नहीं जाते हैं। बोर्ड एग्जाम को आपको नॉमेनक्लेचर करने को बोला जाता है, तो रूल्स वगैरह कोई पूछेगा नहीं। फिर भी ये रूल्स मैंने जो नोट्स बनाए हैं PDF में शेयर करूंगा आपको, तो ये PDF से आप रूल्स वगैरह लिख लो नोटबुक में। और रूल्स अच्छे तरीके से आप बार बार हर बार पढ़ना, थोड़ी देर के बाद उसका रिवीजन करना, तो आप अच्छे तरीके से उसमें नाम वगैरह जो है नेमिंग आप कर सकते हो आईयूपीएसी के द्वारा। अगर दो अगर कार्बोनिल ग्रुप होंगे तो ई रिटेन होता है, दो अगर कार्बोनिल ग्रुप होंगे तो ई रिटेन होता है, और सफिक्स जो लगता है वो लगता है डायोन, डाई-ONE। अगर 3 कार्बोनिल ग्रुप रहे तो ट्राई और ONE ऐसा सफिक्स लगेगा। तो इस तरह से पॉलीफंक्शनल अगर कीटोन रहा तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो लोअर नंबर। सेम रूल है, पिछले वाला जो रूल है वही रूल है, सेम रूल है कि अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो है, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे अगर केटोनिक ग्रुप रहा, केटोनिक कार्बोनिल ग्रुप रहा, तो उसमें हम डायोन लगाएंगे। अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहे तो उसमें हाई प्रायोरिटी ग्रुप हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा और नंबरिंग वहां से करनी पड़ेगी, वहां से हमको लोअर नंबर हमको देना पड़ेगा। ओके, लोअर नंबर हमको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसकी प्रायोरिटी वो आएगी। ओके, तो इस तरह से
ये जो रूल्स है वो हमने पढ़े, समझे हमने। तो आगे चल के हम देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, वो सॉल्व करके हमको समझ आएगा कि हमने जो रूल्स सीखे हैं उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, रूल्स हमने सीखे और अब उसका एप्लीकेशन हम करेंगे अभी कि कैसे वो रूल्स हम यूज करेंगे। चलो देखते हैं कि कैसे। हम पहले देखते हैं हम अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में कौन कौन से हम नेमिंग सिस्टम या नाम हम दे सकते हैं। ओके, तो HCOOH, तो इसका कॉमन नेम जो है या ट्राइवियल नेम क्या आएगा और IUPAC नेम क्या आएगा वो हम देखेंगे। तो ये जो है दो कार्बन दो हाइड्रोजन है, तो ये फॉर्मिक एसिड है। ओके, तो एक कार्बन है तो मीथेन है, E इज रिप्लेस बाय, और COOH ग्रुप है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो OIC एसिड ये सफिक्स लगेगा, तो नाम क्या आया, मिथा मिथे मिथेन। ई को निकालेंगे, OIC एसिड जोड़ेंगे, तो IUPAC नाम क्या आया इसका, मिथेनोइक एसिड। तो इस तरह से ये नाम आया। फॉर्मिक एसिड क्यों आया, क्योंकि दो हाइड्रोजन थे यहाँ पे। दूसरा देखेंगे, एक अल्किल ग्रुप अटैच हुआ उसको CH3COOH, इसका नाम है कॉमन नेम एसिटिक एसिड। क्यों बोला गया है उसका कुछ चैलेंज नहीं है, क्योंकि कॉमन नेम जो है वो रखे जाते हैं। ओके, तो इसमें दो कार्बन है मतलब इथेन है। ओके, और फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो OIC यही सफिक्स लगेगा। फंक्शनल ग्रुप देखना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप देखने से हमको पता चलेगा कि कौन सा सफिक्स लगने वाला है। ई निकलने के बाद OIC एसिड लगेगा मतलब इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये उसका नाम आ गया। आगे देखेंगे हम तीन कार्बन, तो ये हो गया तीन कार्बन मतलब प्रोपेन हो गया, प्रोपियोनिक एसिड। ओके, प्रोपियोनिक एसिड ये कॉमन नेम हो गया। तीन कार्बन है मतलब प्रोपेन है, E इज रिप्लेस बाय IOC एसिड। नियम जो है या रूल्स जो है उसके हिसाब से ही चलना है, आप कभी भी चूक नहीं करोगे नाम देने में। तो ये प्रोपियोनिक एसिड, यहाँ पे ये डिफरेंट है, प्रोपियोनिक है प्रोपेनोइक है, ये ध्यान में रखना आप। ओके, यहाँ पे प्रोपियोनिक है प्रोपेनोइक, प्रोपियोनिक प्रोपेनोइक, समझा आपको, ये डिफरेंस है। नहीं तो आप ऐसा समझोगे कि यहाँ पे तो दोनों नाम ही सेम, दोनों नाम तो सेम ही लग रहे हैं, तो सर कैसे बोल रहे, तो ऐसा नहीं है। जो कॉमन नेम है वो रखा जाता है और IUPAC एक रूल के तहत वो नाम दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रोपेनोइक एसिड होता है, तीन कार्बन मतलब प्रोपेन। चौथा हम देखेंगे, ओके, तो स्ट्रेट चेन अगर तीन से ज्यादा हुई तो N प्रेफिक्स लगाते हैं। चार कार्बन है, एक दो तीन और चार, तो ब्यूटेन है ब्यूटायरिक एसिड, N ब्यूटायरिक एसिड, ये नाम आ गया इसका। अभी इसका जो IUPAC नेम है वो कैसे आएगा, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करने देगी, एक दो तीन और चार। फंक्शनल ग्रुप ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा हमको नंबरिंग देना। तो चार है मतलब ब्यूटेन है अल्केन, और ई का रिप्लेसमेंट होता है IOC एसिड से, तो
ब्यूटानोइक एसिड इसका नाम आ गया। ओके, तो इस तरह से ये नेमिंग सिस्टम काम करती है। तो ब्यूटेन का ई रिप्लेस होता है आईओसी एसिड से, ब्यूटेनोइक एसिड आ गया। आगे वाला नाम देखेंगे हम, CH3 ट्वाइस CH ओके, इसको इलेबोरेट करके लिखेंगे। कार्बन ये है COOH, ऊपर ये हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ओके, यहाँ पे एक CH3, ये दूसरा CH3 नीचे, इस तरह से ये आएगा स्ट्रक्चर, इस तरह से ये स्ट्रक्चर आएगा। ओके, इसका नाम अगर हम देखा जाए तो ये अल्फा, सॉरी यहाँ से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा, ये कार्बोनिल कार्बन छोड़ के नेक्स्ट वाला कार्बन जो है उससे अल्फा एन बीटा। ओके, तो अल्फा मिथिल ग्रुप अटैच है अल्फा को, इस वजह से अल्फा मिथिल, और 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, तो प्रोपियोनिक एसिड है, ये प्रोपियोनिक एसिड है। 3 कार्बन वाला यहाँ पे देखा हमने, 3 कार्बन वाला प्रोपियोनिक एसिड है। उसी तरीके से ये 3 कार्बन वाला जो है वो प्रोपियोनिक एसिड है। और अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिल ग्रुप का आगे वाला जो कार्बन होता है वहां से ग्रीक लेटर शुरू करने हैं, अल्फा बीटा गामा जो कुछ भी है वो वहां से स्टार्ट करने हैं, तो अल्फा यहाँ से आएगा। अल्फा को मिथिल ग्रुप अटैच है, इस वजह से अल्फा मिथिल प्रोपियोनिक एसिड, ऐसे हमको नाम देना पड़ेगा। अगर IUPAC नाम की बात की जाए तो IUPAC में एक स्ट्रेट चेन जो है वो स्ट्रेट चेन B गिनी जाती है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो, एक ध्यान में रखो कि कार्बोनिल कार्बन को गिनती में नहीं लिया जाता कॉमन नेम सिस्टम में, उसके आगे वाला जो है वहां से स्टार्ट करते हैं अल्फा बीटा, पर IUPAC सिस्टम में जो कार्बोनिल कार्बन है वहां से ही नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो एक यहाँ पे देना पड़ेगा, ये 2 या 3 ऐसे भी दिया जा सकता है, 1 2 और 3, डिपेंड है आपको कैसे लिखना है। H यहाँ पे लेके आएंगे, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो 3 कार्बन है, मतलब क्या है, ये प्रोपेन है। ओके, 3 कार्बन जो है इस वजह से प्रोपेन है। इसका एक अलग नाम भी दिया जा सकता है, आइसोब्यूटायरिक एसिड, क्योंकि आइसो कंडीशन है यहाँ पे, सेकंड कार्बन को मिथिल ग्रुप अटैच है और ब्यूटेन है, इस वजह से आइसोब्यूटायरिक एसिड, ऐसे भी हम नाम उसको दे सकते हैं। प्रोपेन है, इसमें ई रिप्लेस होगा OIC एसिड से। प्रोपेनोइक एसिड है, ये तो 100% डेफिनेटली करेक्ट है। उसके आगे दूसरे कार्बन जो है, दूसरे कार्बन को मिथिल ग्रुप अटैच है, उस वजह से 2 मिथिल प्रोपियोनिक एसिड, 2 मिथिल प्रोपियोनिक एसिड। क्यों है, दूसरे कार्बन को ये मिथिल ग्रुप अटैच होने की वजह से 2 मिथिल प्रोपियोनिक एसिड उसका नाम आया है। ओके, आगे का हम देखेंगे। एक्रिलिक एसिड इसको बोलते हैं, कॉमन नेम सिस्टम इसका नाम क्या है, एक्रिलिक एसिड इसका नाम है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, डबल बॉन्ड होने की वजह से, और ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन। ओके, और डबल बॉन्ड है, मतलब प्रोपिन आ गया। ओके, तो प्रोपिन अगर होगा तो लास्ट वाला जो EN है वो निकलेगा। प्रोपेन अगर होता तो E ही निकलता। ओके, एंड E निकल के OIC एसिड, ये सफिक्स लगेगा। तो प्रोप, ओके,
कौन से पोजीशन पे है? दूसरे, एक, दो और तीन। तो दूसरे पोजीशन और तीसरे पोजीशन में डबल बॉन्ड है, और लोअर लोकेंट नंबर लेना पड़ेगा, 2 नंबर लेना पड़ेगा। प्रॉप 2, ओके, प्रॉप 2 ईएन, क्योंकि ये ई तो निकल गया, ओआईसी एसिड, प्रॉप 2 ईएन ओआईसी एसिड, इनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एंड प्रोपिनोइक में फर्क है, प्रोपेनोइक एंड प्रोपिनोइक में फर्क है। वो ये प्रोपिन है, दूसरे कार्बन में और तीसरे कार्बन में डबल बॉन्ड होने के वजह से दो हमको वहां पे डालना पड़ेगा। कॉमन नेम सिस्टम को चैलेंज नहीं है, ये नाम कैसे आया ये कोई भी नहीं बता सकता, वो रखा हुआ नाम होता है। आगे वाला हम देखेंगे, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक दूसरे को अटैच है, तो इसका नाम आ गया ऑक्सैलिक एसिड। दो ग्रुप अटैच है, ऑक्सैलिक एसिड उसको बोलते हैं, और दो कार्बन है तो ये है इथेन। ओके, तो सिंगल बॉन्ड और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने के वजह से या दो कार्बन होने के वजह से इथेन आए। रूल इसमें अलग है, डाई ओइक एसिड, ये प्रेफिक्स क्यों लगेगा मैंने बताया कि अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, तो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब होते हैं तो ई रिटेन होता है, और ई रिटेन होने के बाद जो सफिक्स लगता है वो होता है डाइओइक एसिड। दो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहे तो यहाँ पे नाम जो आएगा वो आएगा इथेन डाइओइक एसिड, ये उसका नाम आ गया, इथेन डाइओइक एसिड उसका नाम आ गया। इस तरह से ये नाम देने की जो मेथड है वो है। आगे वाला हम देखेंगे, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, रूल में मैंने बताया था कि रूल बेंजीन और उसके आगे सफिक्स लगाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम सिस्टम में ऐसे नाम दिया जाता है। तो उसके बाद इसका जो यूपीएससी नेम है वो दिया जाएगा, रिंग जो है या एरिल ग्रुप जो है वो बेंजीन का है, E इज रिप्लेस बाय OIC एसिड, तो नाम आ गया बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड उसका नाम आ गया। उसके बाद आगे का देखेंगे, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोटोलिक एसिड। अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 और 2। ओके, यहाँ पे 3 है, मिथिल ग्रुप है। तो सिंपल है, ये जो है ये तो हमको पता है ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। ओके, और ये मिथिल ग्रुप है दूसरे पोजीशन को मिथिल ग्रुप है 2 मिथिल, और बेंजोइक एसिड का ग्रुप है 2 मिथिल बेंजोइक एसिड, ऐसा उसका नाम आ सकता है।
ओके, तो आगे हम देखेंगे तो इसका कॉमन नेम है सैली सैलिसिक्लिक सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। कॉमन नेम नॉट चैलेंजिंग, क्योंकि हम कुछ भी नहीं बोल सकते उसके बारे में। ये है थैलिक एसिड और ये है साइक्लोहेक्सिल, बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, ये ध्यान में रखना। साइक्लोहेक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इस तरह से ये नाम है। कॉमन नेम सिस्टम में अगर देखा जाए तो सैलिसिलिक एसिड जो है वो उसका नाम आएगा, अभी देखो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये OH ग्रुप है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी इसको दी जाएगी, इसको लो प्रायोरिटी, क्योंकि ये दो दो फंक्शनल ग्रुप वाला है, 2 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, वो भी अलग अलग। तो जब 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं डिफरेंट, तो प्रायोरिटी का सवाल आता है, तो हाई प्रायोरिटी जो है वो उसमें लो नंबर देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से और दूसरे को रहेगा OH ग्रुप। तो इसका जो नाम आएगा दूसरे पोजीशन पे है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ट्रू हाइड्रोक्सी, और जब COH ग्रुप अटैच रहता है तो वो बेंजोइक एसिड रहता है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन रिंग को अगर COH अटैच रहता है तो E रिप्लेस बाय IOC एसिड बेंजोइक एसिड। यहाँ पे 2 है, ये अलग मामला है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे बेंजीन तो है, बेंजीन ये है, ओके, पर यहाँ पे पहले और दूसरे पोजीशन को 2 कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ई रिटेन रहेगा। अगर ऐसा नहीं, ऐसे रूल हमको पता है, रूल क्या है कि अगर 2 से सेम फंक्शनल ग्रुप रहा तो 2 रहे तो ई रिटेन होता है, 2 या 2 से ज्यादा अगर रहे तो ई रिटेन होता है। ई रिटेन हुआ बेंजोइक एंड 1 2 कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक डाई लगता है, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम आएगा। ओके, इसका नाम आएगा, ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो ये प्रेफिक्स लगेगा। हेक्सेन है, 6 कार्बन है, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कुछ भी पॉसिबल नाम हो गए वो हमने देखे कि कैसे वो नाम दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि अल्डिहाइड के नाम हम कैसे, किस तरह से हम दे सकते हैं।